Good morning class. In our last lecture we are discussed about non-budding bacteria and sethate bacteria. Now we will discuss about mycoplasma. Let's start with introduction. Mycoplasma are the smallest and simplest self-replicating bacteria. We all know mycoplasma is smallest and simplest structure. They don't have any complicated organelles in it. Plus they have self-replicating bacteria. That means they can replicate one DNA. There no need to replication of a DNA from another organism or any another outside factor for the replication of DNA. The mycoplasma cell contain minimum set of organelles essential for the growth and replication. माइकोप्लाज्म का स्ट्रक्चर हमें पता है वो स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट है. फॉर दैट रीजन माइकोप्लाज्म हैव ओनली ऑर्गेनेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर growth and replication. No any another organelles that is not required for that growth and replication that did not have. Plasma membrane, ribosomes and a genome consisting of the double-stranded circular DNA molecule. The mycoplasma have only few organelles that is required only for growth and replication. Out of this, one is plasma membrane, ribosome. Ribosome is required for the RNA transcription and the genome, double-stranded circular DNA. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा. उस फॉर रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड डीएनए एंड फॉर ग्रोथ फैक्टर दे हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स दैट इज हेल्प टू ग्रो द माइकोप्लाज्मा. Unlike all other prokaryotes, the mycoplasma have no cell wall and they are consequently placed in a separate class, molecules. हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास सेल वॉल होती है बट द माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल. दैट मीन्स माइकोप्लाज्म हैव डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर इज नो सेल वॉल इन माइकोप्लाज्मा एंड दे आर separated class molecules. Because of this reason mycoplasma have no cell wall. Because of this reason these mycoplasma are separated some different classes and that class is called molecules. Mollis का मतलब होता है soft और cutis का मतलब होता है skin. That means the organism that have a soft skin from outer layer, it is called molecules. The name mycoplasma is derived from the Greek word. जो माइकोप्लाज्मा है वो एक ग्रीक वर्ड है. उसका मीनिंग क्या होता है? माइक्स का मीनिंग होता है फंगस एंड प्लाज्मा का मीनिंग होता है फॉर्म्ड. उसका मतलब माइकोस fungus like form of branching filament and plasma denoting plasticity of their shape. That means mycoplasma का मीनिंग क्या हुआ कि उसका स्ट्रक्चर है वो फंगस जैसा है और वो अपने सेल को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से उसका शेप है वो मेंटेन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जब माइकोप्लाज्मा फाइंड हुआ था तब उसे फंगस के ग्रुप में इंक्लूड किया था बिकॉज द माइकोप्लाज्मा हैव सम स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी लाइक फंगस. बट रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो फंगस नहीं है इसलिए उसको दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र किया गया. जनरल कैरेक्टरिस्टिक माइकोप्लाज्मा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमें अभी डिस्कस किया. वेरी स्मॉल, उसका जो साइज है वो वेरी स्मॉल है 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर. कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स. जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो सकता है इफ दे हैव अ स्मॉल पोर साइज देन द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा इवन दो the mycoplasma can pass from that pore size because the mycoplasma don't have a cell wall.
That means mycoplasma can squeeze their body and pass from the pore size that have a small size than its structure, than its mycoplasma structure. So they can pass through the bacterial filter because of नो सेल वॉल, लेक रिजिड सेल वॉल अभी हमने डिस्कस किया, उसके पास सेल वॉल नहीं है, उसका ये एडवांटेज है कि उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो वो उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा माइकोप्लाज्मा का, जो उसका शेप फिक्स नहीं है तो इजीली उससे भी कम साइज वाले पोर फिल्टर है उसमें से आसानी से पास हो जाएगा, वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेगा और जो पोर है उसमें से पास हो जाएगा। बाउंड बाय ए सिंगल सेल मेम्ब्रेन डेट कंटेन्स स्टीरोल, माइकोप्लाज्मा है उसके पास सिंगल सेल मेम्ब्रेन है जो स्टीरोल से बनी होगी। एक्सट्रीमली पिलोमॉर्फिक वेरिंग इन शेप फ्रॉम कोकोइडल टू फिलामेंटस एंड अदर ब्रीज फॉर्म। एक्सट्रीमली पिलोमॉर्फिक दैट मीन्स दे कैन चेंज इट्स शेप and from cocoidal to the filamentous they have no any fixed shape, that means they can change its shape. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइकोप्लाज्मा है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया है, उसका थिन सेक्शन लिया है और वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे आप थ्रेड लेग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वो थ्रेड लेग स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो दिखाई दे रहा है वो इसका क्रोमोसोम है और जो ये डार्क कलर का दिख रहा है वो उसकी ग्रेन्यूल्स है जो माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। Mycoplasma, ureaplasma, spiroplasma and anaeroplasma cannot synthesize their own cholesterol and require it as a growth factor in culture medium. माइकोप्लाज्मा की अलग अलग स्पीसीज है जिसका एग्जाम्पल है यूरियाप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा एंड एनाएरोप्लाज्मा। ये जो 4 स्पीसीज है वो अपना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं कर सकते बट दे रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ, उसे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ वी हैव टू ग्रो दिस 4 स्पीसीज इन आवर लैब देन वी हैव टू प्रोवाइड कोलेस्ट्रॉल इन as a growth factor in our culture media. If we are not provided cholesterol, then these 4 species cannot grow in our media. Acheloplasma synthesize carotenoid as a substitute for the cholesterol. जो हमारी एक दूसरी स्पीसीज है अकेलोप्लाज्मा, वो कैरोटिनोल सिंथेसिस करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की जगह पे वो कैरोटिनोल सिंथेसिस करते हैं, तो उसे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं है बट विल इनकॉर्पोरेटेड कोलेस्ट्रॉल इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड। बट हम उसे कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करेंगे, कैरोटिनोल को सिंथेसाइज नहीं करेंगे बिकॉज इफ़ वी आर प्रोवाइड direct food then they are not use its energy to waste some another chemical compound. इफ़ हम उसको कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर वो सिंथेसाइज नहीं करेंगे कैरोटिनोल को, उसे कैरोटिनोल को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट मीन्स ये कैरोटिनोल को भी यूज़ कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी यूज़ करते हैं। Insensitivity to cell wall active antibiotics such as penicillin and the cephalosporin. जो हमारा माइकोप्लाज्मा है उसके पास सेल वॉल नहीं है और ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, वो एंटीबायोटिक उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सेल वॉल के साथ अटैच हो जाती है और सेल वॉल का जो सिंथेसिस है उसे स्टॉप कर देती है। यदि सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो रही है तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा।
तो ये माइकोप्लाज्मा है, उसके पास सेल वॉल है ही नहीं, उसके पास सेल वॉल नहीं है. डेट मीन्स दिस टू एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन कैन नॉट अफेक्ट दिस माइकोप्लाज्मा. डेट मीन्स माइकोप्लाज्मा हैव insensitivity from penicillin and cephalosporin. Even any other antibiotic that have effect on cell wall, वो कोई भी एंटीबायोटिक जिसकी सेल वॉल पे इफेक्ट कर होती है, वो एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा को इफेक्ट नहीं करेगी. लिमिटेड बायोसिंथेटिक कैपेबिलिटी ड्यू टू द स्मॉल जीनोम. जो माइकोप्लाज्मा है उसका जीनोम स्मॉल है. इवन इकोलाई जो होता है बैक्टीरिया, उससे भी उसका जीनोम साइज स्मॉल है. डेट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज हाई अमाउंट ऑफ any compound. They have limited capability to synthesize some compound. Multiply by binary fission. However, cytoplasmic division may lag behind genomic division. This result in the formation of multinucleated filament and other shape. जो मल्टीप्लिकेशन होता है माइकोप्लाज्मा का, वो बाइनरी फिजन से होता है. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में लेग बिहाइंड जीनोम डिवीजन. डेट मीन्स जो माइकोप्लाज्मा है उसका जीनोम है वो फर्स्ट डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. डेट मीन्स जो जीनोम डिवाइड हुआ उसकी वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, क्योंकि जीनोम उसका फर्स्ट डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बाद में होता है. जो जीनोम डिवाइड हो जाता है उसकी वजह से सिंगल सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे. उसकी वजह से उसका शेप है उसमें चेंजेस आ सकते हैं. डू नॉट पजेस फ्लैजिला और पिलाई. उसके पास फ्लैजिला और पिलाई नहीं होगा. नॉन स्पोरिंग. जो माइकोप्लाज्मा है वो स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म है. स्टेन पुअरली विथ ग्राम स्टेन. इफ वी आर स्टेन माइकोप्लाज्मा विथ यूजिंग द ग्राम स्टेनिंग, then we can not see properly under the microscope. Can be stained with the Giemsa and Dennin's method. यदि हमें माइकोप्लाज्मा को जो देखना है माइक्रोस्कोप में, तो हम इस दोनों ही स्टेन का यूज़ करके, इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. लेकिन ग्राम स्टेनिंग में हम उसे प्रॉपरली नहीं देख सकते, उसका जो शेप है वो हमें क्लियर नहीं होगा. Cell may either divide by binary fission or first elongated to multinucleated filament which subsequently break up to cocoidal bodies. जो हमारा माइकोप्लाज्मा है उसके पास टू मोड ऑफ डिवीजन है. फर्स्ट वन होगा बाइनरी फिजन एंड सेकंड वन फिलामेंटस प्रोसेस. इन बाइनरी फिजन वी ऑल नो one cell divided into 2 cell and that 2 cell divided into 4 cell and this 4 cell again divided into 8 cell. When division is occur, the number of cell is duplicated. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है हमें सबको पता है. उसका सेकंड मोड ऑफ डिवीजन क्या है? इलोंगेटेड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड फिलामेंट. फर्स्ट जो हमारा फिलामेंट होगा वो इलोंगेटेड होगा. डेट मीन्स उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी. उसके बाद क्या होगा? इलोंगेट होने के बाद वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में कट हो जाएगा और उसका शेप आप देख सकते हैं कौन सा होगा? कोकोइडल शेप. कोकाई शेप के स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे और वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से सिंगल सेल जनरेट होगा, सिंगल सेल ग्रो होगा और उसका फिर से डिवीज़न होगा. उसका नंबर बढ़ जाएगा जब जब डिवीज़न आगे बढ़ेगा तब. तो जो माइकोप्लाज्मा है उसके 2 टाइप से डिवीज़न होते हैं. फर्स्ट वन बाइनरी फिजन एंड सेकंड वन फिलामेंटस प्रोसेस. फिलामेंटस प्रोसेस में क्या होगा? उसका जो फिलामेंट है वो इलोंगेटेड होगा. उसके बाद वो स्मॉल कोकाई शेप में
कट हो जाएगा और उसमें से न्यू सेल है वो फॉर्म होगा। और बाइनरी फिजन में सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू डबल सेल एंड दिस टू सेल अगेन डिवाइडेड इनटू 4 cells. This process continuous and number of cells are increased. The membrane protein and glycoprotein exposed on the cell surface are the major antigenic determinant in mycoplasma. Antigenic determinant that means epitopes. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बोले तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर जब वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उस रिसेप्टर के साथ हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो बाइंड होगी और दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होने के बाद हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगी और उसे जो बाहर का पार्टिकल है उसे किल कर देगी। तो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो क्या होता है, इपीटोप्स होता है, जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसका मतलब माइकोप्लाज्मा है उसके सरफेस पे ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होगा जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, इसलिए हम उसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है। एंटीजन का मीनिंग क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो हमारा बॉडी का पार्टिकल नहीं है, दैट मीन्स नॉन सेल्फ पार्टिकल, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं उसकी सरफेस पे ये इपीटोप्स प्रेजेंट होते हैं और वो इपीटोप्स हमारी बॉडी के एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा और इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। तो जो माइकोप्लाज्मा है उसकी सरफेस ऊपर जो इपीटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। Antisera containing antibodies to this component inhibit growth and metabolism of the mycoplasma and in the presence of complement cause lysis of the organism. Antisera का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होता है वो एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट होता है और जो सीरम होता है उसे हम एंटीसीरा भी बोल सकते हैं। तो एंटीसीरा है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। जब माइकोप्लाज्मा के सरफेस ऊपर जो इपीटोप्स है उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद जो इम्यून सिस्टम है और उसके जो सेल है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद वो माइकोप्लाज्म को किल कर देंगे या फिर उसका जो ग्रोथ है उसे स्टॉप कर देंगे। माइकोप्लाज्मा आगे ग्रो नहीं हो सकेगा, प्लस उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है राइट उसे भी वो स्टॉप कर देंगे। उसकी वजह से माइकोप्लाज्मा का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और वो किल हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस इज वन टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी। कॉम्प्लीमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल C1, C2, C9, दिस इज ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंपाउंड। वो सब क्या होते हैं कि जब कोई बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होगा, our body recognize as a non-cell particle because this particle is not in our body. So our body's immune system or immune cell recognize as a non-self particle. When this type of non-self particle are recognized by our body's immune system are activated, and this is one type of activation caused by the immune system. It is called complement immune system or complement system. जब ये complement system एक्टिवेट होगा तो उसका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारे माइकोप्लाज्मा के साथ बाइंड हो जाएगा और उसे
तोड़ डालेगा, उसका लाइसिस कर डालेगा, जिसकी वजह से माइकोप्लाज्मा हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो सेल को लाइस कर देगा, और जब एंटीबॉडी बनेगा, वो एंटीबॉडी जब माइकोप्लाज्मा के साथ बाइंड होगा तो उसका ग्रोथ इनहिबिट कर देगा, प्लस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसको भी स्टॉप कर देगा। These properties are used in various serological tests that differentiate between mycoplasma species। तो ये प्रॉपर्टी है, जो एंटीबॉडी है वो माइकोप्लाज्मा के साथ बाइंड होगा। जो भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनता है उसकी स्पेसिफिसिटी है, जिस एंटीजन की अगेंस्ट एंटीबॉडी बना है वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन के साथ बाइंड होगा। They cannot bind with any other antigen even they have a same species। तो भी वो दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी की, उसकी मदद से हम जो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट की जो किट होती है, किट के अंदर एंटीबॉडी को ऑलरेडी बाइंड करके रखते हैं और ऊपर से हम एंटीजन को ऐड करते हैं। जो एंटीबॉडी हमें जिस एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है उस एंटीजन की अगेंस्ट की एंटीबॉडी हम अपने किट के साथ बाइंड कर देंगे। बाद में हम एंटीजन ऊपर से ऐड करेंगे। जो वो एंटीजन प्रेजेंट होगा उस सैंपल में, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। यदि वो एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा कोई एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो उसी एंटीजन के साथ बाइंड होगा जिसके अगेंस्ट की वो एंटीबॉडी है। तो इसकी मदद से हम माइकोप्लाज्मा की जो डिफरेंट स्पीसीज है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज यदि कोई एक माइकोप्लाज्मा की स्पीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म 1 लेते हैं जो एक टाइप की स्पीसीज है, और माइकोप्लाज्म 2 जो दूसरी स्पीसीज है। यदि हमने माइकोप्लाज्मा 2 की अगेंस्ट की एंटीबॉडी बनाई है तो वो माइकोप्लाज्म 2 के साथ ही बाइंड होगी, वो माइकोप्लाज्म 1 के साथ बाइंड नहीं होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक है इसलिए। Some mycoplasma possess unique attachment organelles which are shaped as a tipped tip in M. pneumonia, M for mycoplasma, and Mycoplasma genitalium. Mycoplasma pneumonia is the pathogen of the respiratory tract adhering to the respiratory epithelium primarily through the attachment organelles। जो माइकोप्लाज्मा है होता है उसके पास अटैचमेंट के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होती है, और उसका जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप होता है। और वो किस स्पीसीज में प्रेजेंट होती है तो कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है वो कहाँ पे अटैच होगा, तो वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके साथ अटैच होगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियल सेल जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उस एपिथेलियल सेल के साथ जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है वो बाइंड हो जाएगा और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा। Interestingly, these two human mycoplasma exhibit bleeding motility on liquid covered surface. The tip structure always lead against the indicating its importance in attachment. These two species, pneumonia and genitalium, that both have a bleeding motility. Bleeding motility, that means the organism or bacteria that don't have any outer appendages that help to the motility. That means the mycoplasma don't have any appendages, outside appendages for the motility.
One of the most useful feature of mycoplasma is their pellicular fried egg colony shape. उसका जो कॉलोनी होता है, if we are transfer mycoplasma on our agar media and incubate for a incubation time, then the colony are formed is fried egg colony shape. That means the central zone of growth embedded in the agar and the peripheral one on the agar surface. जो फ्राइड एग होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर हमें माइकोप्लाज्म की कॉलोनी में देखने को मिलेगा. उसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर होगा वो सेंटर में हमें डार्क सर्कल देखने को मिलेगा और डार्क सर्कल के आसपास दूसरा जोन होगा. जो डार्क सर्कल है वो अगार की अंदर की साइड होगा. दैट मीन्स द डार्क सर्कल आर इम्बेडेड इन द अगार एंड उसके जो पेरिफेरल है ऑन द अगार सरफेस, उसके आसपास जो लाइटर जोन होगा वो अगार सरफेस के ऊपर होगा और जो सेंट्रल जोन है वो अगार के अंदर होगा. उसका जीनोम कैसा होता है माइकोप्लाज्मा का, तो माइकोप्लाज्मा जीनोम इज टाइपिकली प्रोकैरियोटिक कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोलेक्यूल्स. तो जो माइकोप्लाज्मा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब सबको पता है, ओल्ड सेल, जिसे हम ओल्ड सेल कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है. उसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा जीनोम आर द स्मॉलेस्ट रिकॉर्डेड फॉर एनी सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट. जो भी रिप्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट है, दैट मीन्स सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स दे कैन रेप्लिकेट ऑन डीएनए बाय इट्स सेल्फ. वो सब प्रोकैरियोट्स में से जो माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा होता है उसका जीनोम सबसे छोटा होता है. इन सम माइकोप्लाज्मा द नंबर इज एस्टिमेटेड एट फीवर देन 500. जो उसका जीनोम साइज होता है वो 500 से भी कम होता है. अबाउट 1/6 नंबर ऑफ जीन इन इकोलाई. डेट मीन्स जो इकोलाई होता है उसका भी 6 पार्ट है वो माइकोप्लाज्म का जीनोम है. उसका जीनोम एकदम छोटा होता है. Mycoplasma accordingly express small number of cell protein and lack many enzymatic activity and metabolic pathway. Due to the small genome size, the mycoplasma have a less number of cell protein, plus they don't have a lots of enzymatic activity for metabolic pathway. Metabolic pathway का मतलब क्या होता है, जो भी फूड वो यूज़ करते हैं माइकोप्लाज्म उसका डाइजेशन मेटाबॉलिक पाथवे के साथ होता है. मेटाबॉलिक पाथवे 2 टाइप के, तो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है या फिर उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है. सॉरी, आप सबको एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पता होता है. तो जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसमें कहीं सारे एंजाइम यूज़ होते हुए और वो एंजाइम माइकोप्लाज्मा में सिंथेसाइज नहीं होते बिकॉज उसका जीनोम स्मॉल है. उसकी वजह से जो एंजाइम को जीन कोड करता है वो जीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता. इसकी वजह से वो एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं कर सकते. The nutritional requirements are correspondingly complex and they are dependent on a parasitic mode of life. जो माइकोप्लाज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. दे आर डिपेंडेंट ऑन अ पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ. जो माइकोप्लाज्मा है उसकी लाइफ साइकिल पैरासाइटिक है. दैट मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है. कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है. एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक. एरोबिक का मतलब they need oxygen and anaerobic they don't need oxygen. facultative anaerobic का मतलब if oxygen is present or if oxygen is not present they can survive in both condition. जो
हमने 4 स्पीसीज देखी, वो एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, लेकिन जो एनएरोप्लाज्मा है वो स्ट्रिक्टली एनएरोबिक है. इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दिस स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा देन कैन नॉट ग्रो in the presence of oxygen. For primary isolation, atmospheric of 95% nitrogen and 5% carbon dioxide is preferred. हमें प्राइमरी आइसोलेशन करना है माइकोप्लाज्मा का, तो हमें 95% नाइट्रोजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी. दे कैन ग्रोन विथ इन अ टेम्परेचर रेंज. उसका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो 22 से 41 तक हो सकता है. वो इस इन बिटवीन कोई भी टेम्परेचर में ग्रो हो सकते हैं. पैरासाइटिक स्पीसीज है, जो स्पीसीज दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है, उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या होगा, 35 से 37 डिग्री तक होगा. For fermentative organism, the initial pH of the medium is adjusted to 7.3 to 7.8. जो फर्मेंटेटिव स्पीसीज है माइकोप्लाज्म की, तो उसकी pH हमें इस रेंज में रखनी होगी. If they are arginine metabolizing organism, then we have to pH around 7. And for urea plasma, the pH range is 6 to 6.5. That means different type of mycoplasma species require different type of temperature, different pH range. The dependence of the mycoplasma on their host for many nutrients explain the great difficulty to cultivate in the laboratory. The organism those are depend on the host cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमें लैब में कल्टीवेट करना है तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे जो होस्ट में से रिक्वायरमेंट मिलती है न्यूट्रिशन, वो हम शायद उसे अपने मीडिया में नहीं दे सकते. The complex media for the mycoplasma culture contains serum which provided fatty acid and cholesterol for mycoplasma membrane synthesis. If we are interested to grow mycoplasma in our lab media, then we have to provide this serum that contain fatty acid and cholesterol. These two compounds are required for the membrane synthesis of mycoplasma. If we are not provided these two compounds, then the plasma membrane is not synthesized in mycoplasma. If plasma membrane is not synthesized, then mycoplasma cannot grow on media. The requirement of most mycoplasma for cholesterol is unique among prokaryotic. वो प्रोकैरियोटिक जिसको ग्रो होने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, उन सबसे जो माइकोप्लाज्मा होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग ही होती है. Only a small fraction of mycoplasma existing in nature have been cultivated so far. माइकोप्लाज्मा जो भी जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है नेचर में, उनमें से थोड़ी सी ही स्पीसीज को हम कल्टीवेट कर सकते हैं. बाकी कोई भी स्पीसीज हम कल्टीवेट कर सकते नहीं है. उसे कल्टीवेट करने में उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसे प्रोवाइड करना पड़ता है. उसकी जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो पीएच होती है, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है. इफ़ वी हैव प्रोवाइड ऑल दिस थिंग इन प्रॉपर मैनर, देन एंड देन ओनली माइकोप्लाज्मा ग्रो इन अवर मीडिया. Some of the cultivable mycoplasma, including the human pathogen Mycoplasma pneumonia, grow very slowly, particularly on primary isolation. If we are growing mycoplasma on media, the human pathogenic mycoplasma is called Mycoplasma pneumonia, that causes the pneumonia in human. Grow very slowly in media and particularly on primary isolation. हम प्राइमरी आइसोलेशन करते हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया का, फिर भी वो वेरी स्लो ग्रो होता है. उसका जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल ही स्लो होगा.
यूरिया प्लाज्मा यूरेलाइटिकम पैथोजन ऑफ द ह्यूमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ग्रो वेरी पुअरली इन विट्रो रीचिंग मैक्सिमल टाइटर ऑफ 10⁷ organism per ml of the culture. If we are cultivated this Urolyticum pathogen in our lab, then the maximum titer क्या क्या मीनिंग होता है, जो माइक्रो ट्रे होती है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाइल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसमें से जो डाइल्यूशन जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलते हैं वो हमारा मैक्सिमम टाइटर होगा। तो जो यूरोलाइटिकम ऑर्गेनिज्म है उसका मैक्सिमम टाइटर कौन सा है, 10⁷ ऑर्गेनिज्म पर ml। 1 ml के अंदर जब इतने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तब भी हमें उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। उससे कम हो गए तो हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। माइकोप्लाज्मा जेनिटिलम another human pathogen grows so poorly in vitro that only few successful isolation have been achieved। जो जेनिटेलियम है वो माइकोप्लाज्मा की दूसरी स्पीसीज है जिसे ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वो ग्रो होने के बाद हमें थोड़ी सी आइसोलेटेड कॉलोनी देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जो सेपरेट कॉलोनी होती है उसे हम आइसोलेटेड कॉलोनी बोलते हैं। इंक्यूबेशन टाइम, उसका इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है, 2 to 6 days होता है। मीडिया फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनिटल माइकोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया शुड बी इंक्यूबेटेड फॉर 1 to 4 weeks respectively। If we have to isolate genital mycoplasma, then we have to provide incubation time 1 week, and we have to isolate pneumonia, then we have to provide incubation time for 4 weeks। उसकी साइज क्या होती है कॉलोनी की, 200 to 500 माइक्रोमीटर होती है माइकोप्लाज्मा की और 15 to 60 माइक्रोमीटर फॉर यूरिया प्लाज्मा। The colonies of the ureaplasma are extremely small and thus uroplasma are also called T strain। T का मतलब क्या होता है, tiny strain, क्योंकि उसकी कॉलोनी जो मिलती है वो very small होती है। The platinum loop can't be picked up। हम if the colony are grow on media, then we have to use some another equipment to pick up the colony, because with the help of platinum loops we cannot pick up the colony, because the colony of mycoplasma are embedded in the agar। The subculture is done by cutting out agar block with the colony and rubbing it on a fresh media। If we want to subculture of mycoplasma, then what we have to do, first of all we cut the agar। हमें अगार को कट करना पड़ेगा जहाँ पे माइकोप्लाज्म की कॉलोनी है। आफ्टर कटिंग द कॉलोनी आर रब ऑन द फ्रेश प्लेट, जिस पर हमें ट्रांसफ़र करना है उस प्लेट पर हम जिस अगार को कट किया है उसको वहाँ पे रबिंग करेंगे। उसकी मदद से जो कॉलोनी है वो न्यू प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस इज़ द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी को यहाँ पे जूम करके दिखाया है। तो ये जो होता है वो सेंट्रल जोन होता है जो अगार के अंदर होगा, और ये जो होता है वो पेरिफेरल जोन होता है जो उसके सरफेस पे होगा। और ये कॉलोनी किस तरह के दिखती है, तो वो फ्राइडे एग की तरह दिखती है जिसमें डार्क सेंटर होगा और साइड में लाइटर जोन होगा। Mycoplasma with the fried egg colony morphology appear a high granules and stain with the dark blue center and light blue periphery। तो जो फ्राइड एग होता है उस टाइप की कॉलोनी हमें देखने में मिलती है जिसमें डार्क ब्लू सेंटर होगा और लाइट ब्लू उसका सराउंडेड जोन होगा। अगार बैकग्राउंड अपीयर्स क्लियर और साइलेंटली वायोलेट। जो अगार मीडिया है उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, वायोलेट कलर का हमें दिखने को मिलेगा।
Mycoplasma other than Mycoplasma pneumonia remains stained, but the pneumonia reduce methylene blue after the period and become colorless. जो माइकोप्लाज्मा होता है वो न्यूमोनिया की कंपेयर में स्टैंड रहता है, वो कुछ टाइम तक स्टैंड रहेगा, लेकिन जो न्यूमोनिया होता है वो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद जो मिथिलीन ब्लू है उसे रिलीज करना, उसे रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। मिथिलीन ब्लू रिड्यूस हो जाएगा तो जो न्यूमोनिया की कॉलोनी है वो कलरलेस हो जाएगी, फिर वो हमें पर्पल कलर की देखने को नहीं मिलेगी, सॉरी ब्लू कलर की नहीं दिखेगी, उसका कलर ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा। So this is the colony of Mycoplasma. We can see here the dark center and the peripheral is the lighter blue color. This is the dark blue color and this around light blue color. So this is all about the Mycoplasma. I hope this is helpful for you. Thank you so much.